Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to our subject, which is related to management accounting. Okay, हमने इसके पहले क्या किया है, पहले तो बात मैं आपको वो याद दिला देता हूँ. So we have been doing analysis and interpretation. उसके अंदर बैलेंस शीट को from a horizontal form we have converted into a vertical form. For that approximately 3 or 4 sums जो मैंने सॉल्व किए थे, उसके अंदर जो मार्किंग्स थे, क्योंकि कैटेगराइजेशन becomes very important जब आप एक वर्टिकल बैलेंस शीट करते हो. तो यू मस्ट नो कि शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, और ये फिक्टिशियस एसेट होता क्या है. सेकेंडली, बोरोड फंड्स क्या होते हैं. वी ऑलरेडी हैव डन दैट, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ. हाँ, देन देर इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. आपने पैसे कहाँ कहाँ पे खर्चे किए, फिक्स्ड एसेट्स पे किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पे खर्चा हुआ, एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन, व्हाट, वर्किंग कैपिटल. इन दैट करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी, बट करंट एसेट में क्विक, नॉन क्विक, और करंट लाइबिलिटी में अगेन क्विक, नॉन क्विक. अगर ये कॉन्सेप्ट्स, ये मीनिंग्स आपको समझा तो वर्टिकल बैलेंस शीट समझ में आया. डू नोट, टुडे इवन दो आई एम स्टार्टिंग समथिंग डिफरेंट which is in no way directly connected to a vertical balance sheet, but definitely vertical balance sheet समाप्त नहीं हुआ. अच्छा बट सर आपने 3 प्रॉब्लम किए, खत्म हो गया? नहीं, it will again come, क्योंकि यही चैप्टर में जब हम इंटरप्रिटेशन में जाएंगे, अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, अलग अलग हम लोग हेडिंग्स दे रहे हैं, बट व्हेन वी डू इंटरप्रिटेशन उसके लिए हमको कुछ अलग टाइप के कॉमन साइज कैलकुलेशन, कंपेरेटिव कैलकुलेशन एंड ट्रेंड. मीनिंग व्हेन आई डू समथिंग कॉल्ड एज कॉमन साइज, उसमें बैलेंस शीट दोबारा आएगा. ओके, ये हम पूरा वापस से सॉल्व करेंगे. व्हेन आई डू कंपेरेटिव, उसमें बैलेंस शीट दोबारा आएगा. ओके, फिर से सॉल्व कर लेंगे. मीनिंग बैलेंस शीट खत्म नहीं हुआ, टेम्पररी इसको हमने कॉमा डाला है ताकि मैं जो आज सिखाना चाहता हूँ वो मैं सिखा सकूँ. What am I trying to teach you today? Well, in simple form, I am going to teach you trading account and profit and loss account, but in a vertical format. Please note that. Okay. Till today, trading account में what have you learned?
ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेलिंग का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, फाइनेंस का खर्चा, बैड डेट का खर्चा, बैड डेट का नुकसान, लॉस बाय फायर, वो सब सीखा है। वो सब आपने सीखा है लेफ्ट राइट। अब हमको सीखना है अप डाउन। अप डाउन का मतलब क्या? वर्टिकल। ओके, व्हाट यू सी बिसाइड्स मी इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट। होता भी सिंपल है बट इतने में तो फिट नहीं होता, थोड़ा लंबा चौड़ा तो हो ही जाता है। सो डिटेल में बताने के पहले मैं आपको समरी फॉर्मेट में बताता हूं कि इसका नाम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट क्यों है। बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस यू कम टू नो रिटेन्ड अर्निंग। व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? मेरी कमाई, मैंने कमाया कितना, मेरी जेब में कितना पैसा बाकी है, रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट पता चल जाता है आपको। ओके, इसके लिए इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, बट इसके अंदर होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, शुरुआत कैसे करते हैं? सेल्स से। वो सबसे बड़ा इनकम है कंपनी के लिए। या तो वो प्रोडक्ट की सेल्स करते हैं या तो वो सर्विसेज की सेल करते हैं, तो सेल्स सबसे बड़ा इनकम है, तो स्टार्ट वही से हो जाता है। ओके, फिर रिटर्न्स माइनस, तो नेट सेल्स आ जाएगा। ओके, फिर ये जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस रिटर्न, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, पावर एंड फ्यूल, लाइटिंग एंड हीटिंग, जितना आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में, रॉयल्टीज जितना पता है, वो सब आपको डालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द टेक्निकल वर्डिंग, इट बेसिकली मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अगर मैं वो माइनस करूं तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होने पे तो ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है। चलो, उसके बाद लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ये क्या है? पीएनएल अकाउंट। अच्छा, बराबर है, ट्रेडिंग के बाद में पीएनएल आना चाहिए। हाँ, उसमें क्या? ऑफिस का खर्चा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा मतलब एडवर्टाइजमेंट का, शोरूम का, और फाइनेंस का चार्जेस। कभी कभी बैंक से कनेक्टेड कोई खर्चा हो जाता है तो वो आपको फाइनेंस चार्जेस में लिखना पड़ता है। ये तीन आप सोच सकते हो कि ऑफिस का खर्चा है, इसका एक टोटल आएगा, उसको आप माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट से, आपको आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इन वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट अ वेरी वीआईपी पोजीशन इज गिवन टू इंटरेस्ट का खर्चा, उसको अलग लिखा जाता है। इवन दो वो नॉर्मली पीएनएल में आता था, बट वर्टिकल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट को अलग माइनस किया जाता है। इसके लिए आप नोटिस करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और उसके नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। इन फैक्ट आप पूरा स्टेटमेंट देखो, सर ऊपर पहले ग्रॉस प्रॉफिट है, थोड़ा नीचे आया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और थोड़ा नीचे आया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और थोड़ा नीचे आया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। के यू मे आस्क दिस क्वेश्चन, सर इतने प्रॉफिट से इसके अंदर, सर क्यों कंफ्यूज करना है, बच्चे लोगों को क्यों कंफ्यूज करना है इतने प्रॉफिट से? देखो, यू आर ऑब्वियसली अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स, एंड अकाउंट्स के जो फील्ड है उसमें जो जानकारी उपलब्ध है, मल्टीपल स्टूडेंट्स, नॉट मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल पार्टीज, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, यूज करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल, इस स्टेटमेंट को जो इनकम दिखाता है, प्रूफ करता है कंपनी का, ओके, कौन यूज करेगा? कंपनी खुद यूज करेगी। इंटरनल स्टाफ, उन लोग देखेंगे, हाँ भाई अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हाँ भाई हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, वो देखेंगे ना, हाँ, तो उनको ये यूज आता है। बट एट द सेम टाइम वो कंपनीज या वो लोग जो कंपनी को लोन देते हैं, लाइक बैंक्स, लेंडर्स, बैंक्स, ओके, वो लोग भी देखेंगे। बट वो लोग, सी, एवरीबडी इज लुकिंग एट अ डिफरेंट प्रॉफिट। जो बैंक देखेगा ना, वो क्या देखेगा? अभी मैंने जो पढ़ा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक क्या बोलेगा, आपका ओपीबीआई शॉर्ट फॉर्म, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि उस प्रॉफिट से जो बिफोर इंटरेस्ट है हमको हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो बैंक वेरी सिंपल ना, कोई दया धर्म नहीं कर रहा है, ओके।
वो अपने लिए मतलबी है। दे विल मेक श्योर कि इफ आई गिव यू अ लोन, मैंने लोन दे दिया 200 करोड़ 500 करोड़, और आपको मुझे हर साल 5 करोड़ इंटरेस्ट देना है, 5 करोड़ इंटरेस्ट, तो आई विल नॉट गो कि तुम्हारा सीईओ, तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमको क्या करना है, हमको हमारे पैसे से मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है, बराबर। सो आई विल लुक एट योर ओपीबीआई, मैं बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अरे हमको क्या करना है, मेरे को ओपीबीआई बता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिकॉज फ्रॉम दैट अगर वो है एग्जाम्पल 50 करोड़ और मेरे को मिलना है 5 करोड़, मैं बोलेगा अच्छा 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 मैं सेफ है, मेरा पैसा, मेरा इंटरेस्ट, मेरा। ऐसे ही आगे जाके ना व्हाट डू यू गेट, यू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे नजर किसका रहता है, सरकार, गवर्नमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। उन लोग क्या बोलते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट, वो ओपीबीआई, ओपीए, अरे हमको क्या करना है, हमको एनपीबीटी बताओ, क्योंकि बिफोर टैक्स बोला मतलब हमारे टैक्स का टाइम आ गया, हमको टैक्स तो मिलना चाहिए। सो वेरी सिंपल पुट, देर आर मेनी पार्टीज, ओके, जिन लोगों की नजर अपने कैलकुलेशन पे है। इसके लिए हमने ऐसा एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें देर आर मल्टीपल प्रॉफिट, ताकि सभी लोग एक स्टेटमेंट देख के उनको सबका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाए। जिसको जो प्रॉफिट देखना है देख लो भाई और खुश हो जाओ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट? सबसे पहली बात, तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट। तुम बोलोगे तो सर ये पूरा चीज बिजनेस का तो है, इसमें नॉन बिजनेस क्या है? हाँ है ना, कभी कभी क्या होता है, लॉस बाय फायर। क्या लॉस बाय फायर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हर दिन होता है? नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आपको आपका पुराना बेड डेप्ट वापस मिल गया, ओके, या आपको दूसरे कोई कंपनी से डिविडेंड मिल गया। नाउ दूसरे कंपनी में निवेश करना, इन्वेस्ट करना, क्या आपके कंपनी का मेन काम है? नहीं। आपके पास ज्यादा पैसा था, इसके लिए आपने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया और उन्होंने आपको क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया। वो तुम्हारा मेन इनकम नहीं। तुम्हारा मेन इनकम क्या है? सेल्स। तो इफ आई गेट इंटरेस्ट, मैंने किसी को लोन दिया, मेरे को इंटरेस्ट मिला, मैंने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे को डिविडेंड मिला, वो मेरा मेन इनकम नहीं है। नहीं, तो फिर ऐसे इनकम को क्या बोलते हैं? थोड़ा नीचे आओ, नॉन ऑपरेटिंग expense. What is non-operating? Operating means business. Non-operating means not connected to business. हुआ हकीकत, रियलिटी, बट हर दिन नहीं होता। 14वीं का चांद, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी ये होता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट। बिजनेस तू कमाया, बिजनेस तूने किया, बिजनेस तो हर दिन करता है और वो तो हर दिन कंटिन्यू करने वाला है। वो करके तो कितना कमाया कि अगर एक कंपनी को बीच में लॉटरी लग गई, लॉटरी थोड़ी हर दिन लगती है, वो नॉन ऑपरेटिंग। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, एहे हमको एनपीबीटी मत बताओ क्योंकि उसके ऊपर ये नॉन ऑपरेटिंग आ जाता है। तो मालूम पड़ा कि तुमने लॉटरी की कमाई भी डाल दी, बट वो थोड़ी तुम हर दिन कमाते हो। हर दिन क्या कमाते हो वो बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, सो देयर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, माइनस करोगे इंटरेस्ट तो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ओके, प्रॉफिट मतलब कमाई आपकी। इसके बाद अगर एक इनकम है जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है तो वो आप लिख लो। एक एक्सपेंस है जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, NOI प्लस माइनस कर लो, यू विल गेट NPBT। लेस इनकम टैक्स यू हैव टू गिव नो। अगर भारत में काम करना है तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ओके, एक बार NPAT आ गया, मतलब मैंने सभी को, जिसको टैक्स देना था, जिसको इंटरेस्ट देना था, जो जो खर्चा करना था, सब मैंने कर लिया। अब ये पैसे का क्या करूँ? ओके, इसका आप अप्रोप्रिएशन कर सकते हो। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? अलग अलग रिजर्व्स में, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, या हो सकेगा तो आप आपके लोगों को, आपके शेयर होल्डर्स को क्या दो? डिविडेंड दे दो। तो जो डिविडेंड दिया जाता है वो कहाँ पे आता है? लेस अप्रोप्रिएशन। आई रिपीट माई सेल्फ, अप्रोप्रिएशन
मीन्स वॉट, आपका जो बचा हुआ प्रॉफिट था उसका आपने यूज कैसे किया, वो आपने कौन से जेब में ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू सीआरआर, जो भी आपने ट्रांसफर किया वो एक अप्रोप्रिएशन है। और अगर आपने आपके शेयर होल्डर्स को क्या दिया, डिविडेंड, दैट डिविडेंड वेदर इट इज इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी एक अप्रोप्रिएशन है। एंड एट द एंड यू कम विथ रिटेन्ड अर्निंग, जो आपकी बची हुई इनकम है, विच इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज अबाउट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। दुनिया भर का बाहर वालों का खर्चा, अंदर वालों का खर्चा सब माइनस किया, ये जो बच गया है। लेटर ऑन आफ्टर दिस अ बैलेंस शीट विल बी मेड विच यू ऑलरेडी हैव लर्न्ड, एंड दिस लास्ट स्टेटमेंट का जो आंसर है उसको यहाँ से पिकअप किया जाएगा और कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, इन द बैलेंस शीट। राइट नाउ डोंट वरी, अपनी गाड़ी रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस पे आके अभी के लिए समाप्त हो जाएगी। नाउ वेरी क्विकली, ये तो एक इजी फॉर्मेट है, लेट मी गिव यू द लंबा स्टोरी। व्हाट इज लंबा स्टोरी? दिस इज व्हाट इज देयर इन नॉर्मली एवरी टेक्स्ट बुक। Gross sales and services, it is the same format but with all the category details कि सर तुमने बोला COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें क्या क्या आता है, तुमने बोला एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, उसमें क्या क्या आता है, तुमने बोला नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसमें क्या क्या आता है, तो क्या क्या आता है वो तुमको बता देता हूँ मैं। ओके, डोंट बाय हार्ट दिस, ओनली अंडरस्टैंड। अब पहला क्या है, पहले फैक्ट्री का पंगा, उसके बाद क्या है ऑफिस का पंगा, उसके बाद क्या है नॉन ऑपरेटिंग वाले पंगे। हाँ, तो वो सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, बाय हार्ट मत करना, नॉट रिक्वायर्ड। चलो, पहले सेल्स आएगा, उसमें समटाइम्स कैश सेल्स, समटाइम्स क्रेडिट सेल्स, समटाइम्स दोनों। लेस रिटर्न्स, आई गेट नेट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर नेट सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, उसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, प्लस करो, परचेसेस आएगा, प्लस करो, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, फैक्ट्री पावर, वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, पैटेंट एंड पेटेंट्स। यू सी नॉर्मली डेप्रिसिएशन किधर आता है, पीएनएल में, बट इन दिस फॉर्मेट वेरी वेरी प्रैक्टिकल फॉर्मेट, डेप्रिसिएशन जिस एसेट पे होता है और वो एसेट जहां पर इस्तेमाल होता है, यूज, वहां पर डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, मतलब मशीनरी कहां पे यूज करते हो, मशीनरी तो हम फैक्ट्री में यूज करते हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस कहां पर आएगा, फैक्ट्री में। दिस इज फैक्ट्री का लिस्ट, प्लीज नोट, दिस इज फैक्ट्री का लिस्ट। तो डेप्रिसिएशन में आपको थोड़ा नहीं, बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन, नॉट सॉल्व, जस्ट डिस्कस अ क्वेश्चन विथ यू, एंड उसके अंदर मैं आपको याद दिलाऊंगा। डेप्रिसिएशन में थोड़ा आप केयरफुल रहना, वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डोंट से सब किसी का भी डेप्रिसिएशन रहेगा ऑफिस में डाल दो, नहीं, नॉट हियर। यहाँ पे ध्यान देना दैट द डेप्रिसिएशन इज ऑन व्हाट एसेट and accordingly what category. Okay, so from top to bottom everything is connected to the factory. You write it, you will get cost of goods sold, उसको net sale से माइनस करो, आपको मिलेगा gross profit, very important. Okay, जैसे ही gross profit मिलेगा उसके नीचे क्या, आपको operating expenses माइनस करना है। What is operating business? अच्छा, बिजनेस में क्या क्या खर्चा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का, उसमें क्या, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट, टेलीफोन, डायरेक्टर्स फीस, लीगल, ये सब लोग तो ऑफिस में काम करने आते हैं, यस, तो इनका तुम ऑफिस में डालो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्समैन, शोरूम, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर, एडवर्टाइजमेंट, जितना भी कनेक्टेड है किसके साथ में, सेलिंग के साथ में, शोरूम के साथ में, एडवर्टाइजमेंट के साथ में, पब्लिसिटी के साथ में, डाल दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड फाइनेंस, फाइनेंस में क्या आता है, अरे वो डिस्काउंट आता है ना, कैश डिस्काउंट, कभी कभी बैंक चार्जेस आता है, कभी कभी अबनॉर्मल बैड डेब्ट्स। प्लीज नोट, इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज नॉर्मल बैड डेब्ट, नॉर्मल, बट इन द नेक्स्ट वन विच इज फाइनेंस देयर इज अबनॉर्मल बैड डेब्ट। वेरी सिंपली पुट, ओके, नॉर्मल बैड डेब्ट का मतलब क्या है, ये तो होता ही है बिजनेस में, ये तो रेगुलर है,
When they give you bad debt, please understand, consider it to be normal bad debt and write it in selling and distribution. बट अगर वो आपको स्पेसिफाई करके बोले नहीं 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 ये अब नॉर्मल है, अच्छा फिर डालना फाइनेंस के अंदर। ओके, एक बार ये आपने ए बी सी कैटेगरी डाल दिया, उसको टोटल कर लो, उसको आप आपके ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर लो, फिर आपको क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, OPBI। बिफोर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के खर्चे को माइनस करो। चलो चालू करते, कौन सा इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट, जो लोन लिया है, लोन को अलग अलग नाम आते हैं, वो सारे लोन जितने लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट इधर आएगा, बिकॉज वो सभी लोग ये वाले नंबर को देखते हैं कि ये OPBI क्या आया, क्या मेरे को मेरा इंटरेस्ट मिलने वाला है कि नहीं, क्या ये कंपनी उतनी कमाती है कि नहीं, they are looking at it. Okay, then you get net profit after interest, which is also operating profit after interest. फिर क्या आता है, net operating non operating income। ये क्या है, see it is an income, ये क्रेडिट साइड की चीज है, इनकम, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, बट ये एवरीडे आपके बिजनेस में कमाया नहीं जाता। डिविडेंड ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डैमेजेस रिसीव्ड। What do you mean by profit on sale of fixed asset? अरे हमारे पास एक पुरानी मशीन थी, 20 साल पुरानी, बेच दी, अच्छा प्रॉफिट मिला हमको उसमें, हर दिन होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, 20 साल में बेचा ना, कभी कभार, नॉन ऑपरेटिंग। थोड़ा नीचे आना, शेयर ट्रांसफर फीस, ये क्या है, वो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर्स ट्रांसफर किए तो ट्रांसफर फीस हमको मिला, अच्छा ये ट्रांसफर हर दिन होता है, नहीं कभी कभार, तो इसकी फीस भी तो कभी कभार मिलते हैं आपको। सो प्लीज नोट, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, व्हाट, ये जो नॉन ऑपरेटिंग है, दिस इज दोज इनकम जो रेगुलर नहीं है। सिमिलरली जैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वैसे है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इफ यू सी अबाउट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डैमेज इज पेड, फाइन और पेनल्टी, समटाइम्स कभी कभी टैक्स अथॉरिटीज के साथ पंगा हो जाता है तो फाइन देना पड़ता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, बट हर दिन नहीं देते, तो वो क्या है, नॉन खर्चा है, बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू माई रेगुलर बिजनेस। ओके, वंस यू डू द प्लस ऑफ द इनकम माइनस ऑफ द एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग, यू विल कम टू NPBT, जो गवर्नमेंट IT डिपार्टमेंट पहले उठ खड़ा होएगा, चलो चलो अभी हमारा टैक्स दो, आपको टैक्स देना पड़ेगा तो वो माइनस कर लो, फिर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपका लास्ट का प्रॉफिट है करंट ईयर का। इसमें आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट जोड़ो, क्योंकि हर साल कंपनी कुछ ना कुछ तो बचा के रखती है, उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर का प्रॉफिट। हाँ, फिर आपको टोटल प्रॉफिट पता चलेगा, फिर अप्रोप्रिएट करो। अप्रोप्रिएट का मतलब बंटवारा, क्या बंटवारा करूँ, या तो आप कोई फंड में पैसे डाल दो, रिजर्व्स में पैसे डाल दो, या तो आप डिविडेंड दे दो, इक्विटी वाले को दे दो, प्रेफरेंस वाले को दे दो, और आएगा रिटेन्ड प्रॉफिट, ये जो लास्ट लाइन है, क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज रिमेनिंग। इसके बाद में और किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर भी आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये उठा के बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में रख सकते हो। राइट नाउ, because the format was so lengthy, which it actually is, if I put it on one page, वो फिट भी नहीं हो पाता, तो भी मैंने कोशिश कर ली। प्लीज नोट, यू स्टार्ट विथ ग्रॉस सेल्स, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन विच यू सबट्रैक्ट व्हाट, यू सबट्रैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स, यू विल देन गेट ग्रॉस प्रॉफिट, जो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आता है। ओके, वो दिख नहीं रहा है बट आता है। फिर आएगा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब क्या, P&L, उसमें ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा और फाइनेंस, जिसमें कैश डिस्काउंट या अबनॉर्मल बैड डेब्ट्स आता है, वो बहुत रेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट माइनस करो, कौन सा इंटरेस्ट, जो भी आप बैंक को देते हो, आपने लोन पे दिया, डिबेंचर पे दिया, क्योंकि डिबेंचर एक लोन होता है। आपको आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर आप नॉन ऑपरेटिंग मसाला डालो, वो इनकम
जो बिजनेस में हर दिन नहीं कमाते और वो एक्सपेंस जो बिजनेस में हर दिन नहीं खर्चा करते हैं। फिर आप पूछोगे मेरे सिर के ऊपर, मतलब जो ऊपर लिखा गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड देन लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करो, टोटल प्रॉफिट पता चलेगा, अप्रोप्रिएट करो रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस। राइट नाउ मेनी ऑफ यू हु मे वॉच दिस पर्टिकुलर लेक्चर से कि सर इतना बड़ा 1 पेज 2 पेज 3 पेज लगभग 4 पेज है सर, हाउ डू वी रिमेंबर? प्लीज डोंट रिमेंबर, नॉट पॉसिबल। तो सर फिर क्या करूँ? देखो भाई, याद नहीं करना है आपको पूरी कोशिश करनी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन है, ये एक पास्ट बोर्ड का क्वेश्चन है, बैफ के लिए आया था, TY BCom में जब ये सब्जेक्ट था तब आया था। तो इसमें मार्किंग क्या करने हैं, आने वाले 5-10 मिनट में हम वो ही समझने वाले हैं। सो whenever you have the textbook in front of you, you keep this format in front of you. अच्छा, ये ऑफिस है, इसमें ये आता है, ये सेलिंग इसमें ये, इसमें ये फाइनेंस है, इसमें ये आता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये NOI है, NOE है, सामने रखो जब तक आप 8 सम 10 सम का तगड़ा मार्किंग ना करो और आप मार्किंग में गुड बेटर बेस्ट बन जाओ। ओके, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे मेरे को तो फॉर्मेट आ गया। यस, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसको जब ट्रेनिंग देते हो ना, तो कितनी भी डिफिकल्ट चीज़ क्यों ना हो, इट विल मेक इट सिंपलर। राइट नाउ क्या करें, ये देखते और क्या करते। ऊपर क्या लिखा है, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर, लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट ऑफ वेल बैलेंस्ड लिमिटेड, कंपनी का नाम है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट में क्या है, डेबिट में खर्चा है, क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में कमाई है, और लास्ट में क्या है, नेट प्रॉफिट। तो आंसर है, हाँ तो हमको भी वही आना चाहिए, 1,45,000, बट when you calculate make sure it doesn't look like this, left right daya baya, no, it looks up and down, vertical. अच्छा, today only giving you what markings. Okay, marking meaning what? First item क्या है, if you have your textbook, आप textbook में इसको मार्क कर सकते हो। When we solve this, I will mention in the title of the lecture कि पेज एंड क्वेश्चन नंबर क्या है। ओके, हाँ, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, वेयर डू यू थिंक ओपनिंग स्टॉक कम्स? ऐसा है यार, ये तुम देखेगा ना इसमें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो इधर तो मार्किंग क्या होना चाहिए, फैक्ट्री का कुछ भी रहने दो, सबको मार्क करने का COGS। ओके, तो COGS, सो आई जस्ट पुट अप द मार्किंग देयर। अच्छा, फिर परचेस है, वो भी फैक्ट्री में करते, ट्रेडिंग अकाउंट, COGS। वेजेस, पेमेंट तो हम लोग फैक्ट्री में करते, लिखते भी तो फैक्ट्री में, COGS। फैक्ट्री एक्सपेंस, अरे वो तो एकदम बेशर्म है, खुद बोल रहा है फैक्ट्री का खर्चा है, तो उसमें क्या आर्ग्यू करने का, COGS। अच्छा, और कुछ है, देख क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी तो ट्रेडिंग में आता है, यस। ओके, COGS। एनीथिंग एल्स? हाँ, अभी ना तुमको वो ACP प्रद्युमन था ना, जब भी गड़बड़ होता था, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, अभी तुमको वैसा थोड़ा बिहेव करना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ कहाँ पे है। देख, डेप्रीसिएशन बोला है, ओके, उसमें ऑफिस फर्नीचर, वो तो ऑफिस में रहेगा, प्लांट वो तो फैक्ट्री में रहेगा, डिलीवरी वैन वो तो शोरूम के बाहर रहेगा। अच्छा, तो ये जो प्लांट है ना, प्लांट का डेप्रीसिएशन, ये COGS में आना चाहिए। अरे बट सर, बाकी का आइटम ऊपर और ये बीच में आ, तो दे आर वेरी क्लेवर, कुछ भी कहाँ पे भी दे दिया। तू एनालाइज कर रहा है तो एनालाइज बराबर से कर, वही तो काम तुझको दिया है। आर यू रिक्वायर्ड टू फाइंड नेट प्रॉफिट? नो, इट्स रेडी। यू हैव टू कन्वर्ट दिस हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल। तो उसमें आपको मार्किंग तो करने हैं, तो थोड़ा 2 बार पढ़ लो, उसके बाद में मार्किंग करना, बिकॉज मार्किंग कर ली तो दुनिया जीत ली। हाँ, इसकी दुनिया तो पक्की आपने जीत ली है। सो फैक्ट्री में COGS हमने मार्क कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ऑफिस सैलरी, तो वो तो ऑफिस में लिखने का,
ओके, मैंने OA, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, OA। देन रेंट, वो भी ऑफिस में ही रहेगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस में से ही भेजते हैं। डायरेक्टर्स फीस, मतलब आजकल तो टेलीग्राम बंद हो चुका है, टेलीग्राम का ऐप ही अवेलेबल है। ओके, पोस्टल ऑफिस से तो टेलीग्राम नहीं होता। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर भी तो बैठता तो ऑफिस में ही, यस ऑफिस। सो ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डायरेक्टर, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अच्छा, और कुछ है ऑफिस का? थोड़ा नीचे आ जा। क्यों? देख, डेप्रीसिएशन दिया है ऑफिस फर्नीचर का, जानबूझ के नीचे दिया है। नो प्रॉब्लम, स्टीवन सर बोला ध्यान से मार्क करने का, पूरा सम को लेफ्ट राइट 360 डिग्रीज देखने का। तो हम तो ये वाला मार्किंग करेगा, ऑफिस। दिस कवर्स एवरीथिंग दैट शुड गो इन ऑफिस। ऑफिस के बाद क्या? फिर सेलिंग है, तो चलो सेलिंग मार्क करते। सेल्समैन सैलरी, SD, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजिंग, ऑल्सो SD। डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। डिबेंचर इंटरेस्ट, नहीं, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का खुद का कैटेगरी है जिसका नाम ही इंटरेस्ट। हाँ, तो सेलिंग में वो नहीं जाएगा। अच्छा, तो और कुछ देखो, अगेन थोड़ा नीचे दिया, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन नहीं, उसका डेप्रीसिएशन। हाँ, तो वो कनेक्टेड है डिलीवरी के काम से ना, तो वो भी आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ऑफ फैक्ट्री मार्किंग डन, ऑफिस मार्किंग डन, सेलिंग मार्किंग डन। आता काय? डिबेंचर इंटरेस्ट, ये क्या है? ये इंटरेस्ट का कैटेगरी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, देन कंफ्यूज्ड मत रहो, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो इफ़ यू नोटिस हियर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। ओके, द रीज़न मैं थोड़ा उस तरफ देख रहा हूँ बिकॉज द मॉनिटर इज देयर। ओके, सो इट्स जस्ट गिवन बिसाइड्स मी। कोई भी तरह का इंटरेस्ट का पेमेंट, कमाई नहीं, खर्चा, वो आप इंटरेस्ट के कैटेगरी में लिखोगे, तो हम इंटरेस्ट मार्क कर देते हैं, इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। वैन कब बेचते हो? एकदम रेयरली। मैं तो 5 साल चलाता हूँ, 8 साल चलाता हूँ, फिर बेचता हूँ, तो लॉस हो गया। हाँ, तो हर दिन थोड़ी होता है। इसको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, NOE। इनकम टैक्स, वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है यार, वो बिजनेस से कनेक्टेड है बट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हाँ, तो ये माइनस होता है NPBT से, या तो NPBT के बाद इसको लिखते हैं। क्रेडिट में इनकम है, कौन सी इनकम? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। सेल्स का क्या? अरे सेल्स से तो अपनी शुरुआत होती है, तो उसका कोई मार्किंग नहीं है, डोंट वरी, उसका कोई मार्किंग नहीं है। बट उसके नीचे जो है ना, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने इन्वेस्ट किया है कहाँ पे, वहाँ से आपको डिविडेंड आ रहा है। अच्छी बात है ना, कमाई है। हाँ, बट देन इन्वेस्ट करना, आप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं हो, आप कोई बैंक नहीं हो जो हर दिन इन्वेस्ट करते हो। तो ये इनकम है, नो डाउट अबाउट इट, बट बिजनेस का इनकम नहीं है, ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NOI। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आयु आपका सरनेम है फर्नीचर वाला। अभी कोई बोलेगा हाँ सर मेरा तो सरनेम है फर्नीचर वाला, तो प्लीज क्षमा चाहता हूँ। ओके, जनरली नहीं होता ना। ओके, हाँ, तो नॉर्मली फर्नीचर बेचना, कबर्ड, डाइनिंग टेबल, सोफा, हर दिन का काम थोड़ी है, इट्स नॉट एन एवरीडे एक्टिविटी। तो अगर वो आप एक बार करो और उस पर आपको प्रॉफिट एक बार हो, तो वो भी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लाइक दिस देयर आर गोइंग टू बी मोर क्वेश्चंस। सबसे पहला काम हमारा होगा मार्क करना। द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू, I will repeat this marking very very quickly and then solve it, because right now what you see behind me is left right horizontal. We have to convert this and make this into vertical, and that is exactly what the line 2 above says. Prepare vertical income statement. I repeat myself, आज का काम मेरा था आपको ये कॉन्सेप्ट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करना, जो मैंने कर दिया। अभी इस पे वेराइटी बहुत है, बट वो इमीडिएटली नहीं हो सकता है। व्हाट आई मेंशन्ड, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड, ये सब जब करूंगा इट विल स्टिल बी डन इन बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट। बट राइट नाउ लेट अस गेट गुड बेटर बेस्ट एट अंडरस्टैंडिंग कि ये वर्टिकल स्टेटमेंट हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज इट फॉर मी फॉर टुडे।
शॉर्ट लेक्चर, ताकि ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए. आई मीट यू वेरी सून एंड वी विल कंटिन्यू विथ मोर practice problems of this particular chapter and this particular concept in the chapter. तब तक अगर आपको याद दिलाना मेरा फ़र्ज़ है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए. ये सब्जेक्ट के बारे में, ये चैनल के बारे में अपने दोस्तों तक प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए लिंक को, ताकि उनको भी पता चले कि पूरा सिलेबस जो है आपकी स्टैंडर्ड का यहाँ पर अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट की तरफ से completely available है. ओके, that is it for me for today. अपना ख्याल रखिए. Take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. I hope safety and love always surrounds you. Till the time we meet again, good day to all of you. God bless. Bye for now.